আমরা আজকে ওয়েবস্টার ইউনিভার্সিটি থাইল্যান্ড ক্যাম্পাসে পৌঁছে গেছি অ্যাডভেন্ট এডুকেশনের সাথে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখব মিস্টার রতীশ ঠাকুর, রেক্টর অফ ওয়েবস্টার ইউনিভার্সিটি থাইল্যান্ড ক্যাম্পাস, উনি কী বলছেন ওনার এক্সপিরিয়েন্স, এবং তার সঙ্গে দেখব অ্যাডভেন্ট এডুকেশনেরই পাঠানো একটি স্টুডেন্ট, তার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট ওয়েবস্টার ইউনিভার্সিটি। Welcome to Webster University, Thailand. With me, I have Mr. Ratish Thakur, and the rector of Webster University, Thailand campus. First of all, sir, I just want to know if you can share with the audience about Webster University. Well, Webster University is an American university, and we were founded in St. Louis, Missouri, in the U.S. in 1915. So we are coming now to 100 years. We have campuses in many different countries, and Thailand is one of those countries. We have been in Thailand now for almost 15 years. We know many Indian students are coming to Thailand to study in Webster University, Thailand. What is your experience with Indian students? Well, I think students, regardless of where they come from, they will follow the opportunities. Right. I think we all are very clear that the future lies in Asia. Right. Now, why you think that Indian students are considering Thailand as their educational destination? See, once we understand that there are greater prospects in Asia, then within Asia, ASEAN is an important region, and Thailand perhaps is at the forefront in ASEAN. So I would say primarily the reason is future career opportunities. Okay, and on that particular note, I just want to know that for Indian students to come to Thailand and do their master's degree over here, what career opportunity they can look after completion of their master's degree program? Oh, there are immense opportunities. Companies in Thailand, we see with the upcoming ASEAN integration, Thai companies are expanding overseas. They have been very aggressive in acquisitions in other countries in the region. They are expanding. The general business sentiment is good. It's positive. So as companies become more international, as they become more regional, they need to make sure that their workforce, particularly at the senior level, also reflects internationalization. So in many ways, Indians have a good advantage because of their language skills. They are fluent in English. Many of the young Indian people are well traveled. I would say they have the motivation to work and live abroad. All right. And I think there is also one fact that we cannot ignore is that there are a very large number of very successful Indians who live and make their careers outside of India. So all of these things kind of add up together. Okay. Sir, I know you can speak in Hindi as well. For the audience, the prospective students who might be interested to come and join Webster University Thailand campus in near future. So if you can say a little bit about Webster in Thailand and welcome them in our mother language. हिंदी तो हमारी मदर टंग है, तो हिंदी तो सभी बोलते हैं. एक्चुअली अगर हिंदी बोलते हैं तो उसका काफ़ी बेनिफिट भी है थाईलैंड में, क्योंकि थाई को समझने के लिए भी हिंदी की जो हमारी नॉलेज है वो काफ़ी यूज़फुल है. काफ़ी सारे थाई वर्ड संस्कृत से हैं, हिंदी से मिलते जुलते हैं. Right. And my last question to you, Webster University Thailand, if I compare with any other university in the Southeast Asia, where Webster University Thailand stand, including Indian university? I think we should not limit to only Southeast Asia. Right. We should say on a global scale. Correct. So on that context, we see that possibly Webster, for one, it is the only university which has its own campuses everywhere. Sir, you are an Indian, and I assume that you speak in Hindi as well, right? So can I ask you one question in Hindi? हाँ जी, ज़रूर. Okay. मेरा सवाल ये है कि being an Indian and as a rector of an American university, how you feel about it? What's your experience? एक्चुअली तो अच्छा लगता है कि एक चीज़ है कि अपने देश में हमारे लोग रिकग्नाइज़ करें, और एक उससे हायर लेवल है कि दूसरे देश के लोग हमें रिकग्नाइज़ करें.
सो ज़रूर अच्छा लगता है, आई फील प्राउड। और मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप इंडियन हैं या अमेरिकन हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आई एम द इंडियन हेड ऑफ एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सर, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, सो व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा? सक्सेस मंत्र एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड। मेहनत तो सब लोग करते हैं, पर आप सिर्फ मेहनत ही कर रहे हो बिना कुछ सोचे तो ज़्यादा दूर जाने वाले नहीं। अगर आप दिमाग से पहले सोचो और उसके बाद मेहनत करो तो बहुत ज़्यादा चांस है। सो मेरा मंत्र है वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड। सो व्हाट इज द रूट टू फेलियर अकॉर्डिंग टू यू? रूट टू फेलियर भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप दूसरे देश में जाते हो और बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते, मैंने देखा है हमारे इंडियन लोगों में ये होता है कि मैं रहूँगा तो दूसरे देश में, पर रहूँगा बिल्कुल जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ। आई थिंक अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो ज़रूर फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा हैं। আমাদের সঙ্গে এখন আছে সৌরভ। সৌরভ ওয়েবস্টার ইউনিভার্সিটি থাইল্যান্ড থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি করেছে সৌরভ, ঠিক আছে? প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি ওয়েবস্টার ইউনিভার্সিটি থাইল্যান্ড কি করে সিলেক্ট করলে? वेबस्टर यूनिवर्सिटी थाईलैंड, मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे पढ़ रहा था, तो वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। और मैं अपनी पढ़ाई दिल्ली में कर रहा था, तब मुझे वेबस्टर के बारे में सुनाई पड़ा। और उसके बाद मैं किससे आपने सुना? एडवेंट एजुकेशन से मैंने सुना। फिर मैंने अपने दोस्त को पूछा जो यहाँ पे पढ़ रहा था, और उसने बहुत ही अच्छी बातें कही इस जगह के बारे में, वेबस्टर के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में। तो वो एक बहुत ही अहम फैक्टर था। तो जो तुमने सुने थे पहले और जो एक्सपीरियंस किए हो अभी, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? अंतर तो यही होगा कि मैंने वेबस्टर के बारे में जितना सुना था, यहाँ आके वहाँ से उससे और भी अच्छा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि यहाँ के फैकल्टी बहुत ही अच्छी है और मेरे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इतने दूसरे अलग अलग देशों के लोगों से मिला यहाँ पे आके। आई थिंक अराउंड 50 नेशनैलिटीज़ के अलग बच्चे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला जो कोई भी बुक मुझे नहीं सिखा सकेगी। जो एक्सपीरियंसेस हैं तो वो बहुत ही। आपने कौन से प्रोग्राम में एनरोल किए थे? मैंने इंटरनेशनल रिलेशन। और अभी तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन मास्टर्स डिग्री ने आपने एनरोल की थी, तो वो तो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इधर पे आपको? अपॉर्चुनिटी वैसे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही मिलते हैं, पर मैंने जो डिसाइड किया है, मैं वियतनाम जा रहा हूँ। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करने वाला हूँ, तो मैं नेक्स्ट मंथ वियतनाम जा रहा हूँ। जो हम लोगों का हिंदुस्तान में और जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उनको आप क्या संदेश भेजोगे इधर से? मैं तो संदेश यही देना चाहूँगा कि वेबस्टर यूनिवर्सिटी अच्छी जगह है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। और यहाँ पे सब लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एक एक्सपीरियंस रहेगा जो आप सारी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और जैसे आप जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए भी डेफिनेटली मिलेगा सबको। थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, आप हार्ड वर्क कीजिए तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ही बहुत ही हेल्पफुल है, तो वो आपकी बहुत मदद करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स मेरे आए इंडिया से और इस एक्सपीरियंस को देखें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि हाँ जी, इंडिया में जो एजुकेशन आपने ली थी 10+2+3 की, हाँ जी, और इधर पे जो आपने मास्टर्स डिग्री की, हाँ जी, ये दो एजुकेशनल सिस्टम की डिलीवरी में क्या अंतर आपने पाया? अंतर तो ये होगा कि यहाँ पे रिसर्च बेस्ड है बहुत, तो एक आदमी को बहुत रिसर्च और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे प्रोफेसर्स हमेशा कहते हैं कि किताब में जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पर आप खुद भी बाहर जाके खुद रिसर्च करके आप और कुछ लीजिए, तो वो बहुत ही बिग डिफरेंस है इंडिया से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेहतर है, ये अलग, पर मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये अलग है, तो इसीलिए वेरी डिफरेंट। और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए।